Namaste. Greetings to all. I'm happy to share with you that the Ministry of Electronics and Information Technology of the Government of India is observing Satarkta Jagrukta Pakhwada during 27 October to 10th November. The theme for this year is Satark Bharat Samriddh Bharat, and this theme aptly reflects the underlying importance of constant vigilance by all citizens towards safeguarding integrity as a core value for economic growth and development of the country. The observance of the Satarkta Jagrukta Pakhwada this year commenced with the Integrity Pledge administered virtually by Honorable Minister of State for Electronics and Information Technology, Shri Sanjay Rao Dhotre, to all officers and employees of the Ministry of Electronics and Information Technology and its organizations. Various activities have been organized as part of the observance of the Pakhwada, and that include essay competition, poster competition, slogan writing competition, webinars, and quiz. These are being held during the fortnight for participation by not only the officials of the ministry and its organizations, but also by citizens in general. A training session was also held on administrative and preventive vigilance for creating awareness on vigilance for the officials of the ministry and its organizations. As part of this Pakhwada, there is also a series of expert talks that is being organized by the ministry to deliberate on issues of contemporary importance towards generating greater vigilance amongst all of us in every sphere of our life that will enable us to combat collectively the vulnerabilities to any risk. The theme for today's expert talk is Enhance Efficiency, Detox Self from Vulnerabilities and Stress. This talk will focus on maintaining and enhancing efficiency and at the same time maintaining a work life balance as well as combating any issues of stress, anxiety, or mental health and maintaining a healthy balance even in our personal lifestyle that will lead to a happy individual. How practical it is to maintain a work life balance when the going gets tough, especially during the pandemic times, will also be an area where we would seek the guidance of our expert who's going to deliver the talk with us today. And to share her thoughts and to guide us on enhancing efficiency and maintaining a healthy and stress free lifestyle today, we are proudly privileged to have with us Dr. Aruna Bruta, who is a retired professor from Department of Psychology, University of Delhi, and is a clinical psychologist. Dr. Bruta is possessing a doctorate in clinical psychology. She has done courses in advanced clinical techniques and Albert Ellis's rational emotive therapy at the University of Wisconsin and has taken practical training at the Jefferson County Family Counseling Therapy Center at Wisconsin. Dr. Bruta has been the president of National Academy of Psychology and Sambhavtah, an NGO that is dedicated to uplifting the mental health of the citizens of India. She has also been the editor of the Journal of Research and Applications in Clinical Psychology. Dr. Bruta has been conferred with Lifetime Achievement Award by Indraprastha College of Delhi University for her contribution in the field of clinical psychology and has also been conferred the Global Indian Award for Excellence in Psychology by the Global Indian Congress, San Francisco. She won the Babu Ram Award for Best Research Paper for her article in the Journal of Personality and Clinical Studies and was declared the Educationist of the Year by Raja Ram Mohan Roy Education Society. A trained psychologist, an acclaimed mental health expert, a revered people transformation expert, and a highly sought after employee engagement expert with world's leading corporate conglomerates, schools, colleges as her clients, Dr. Bruta has over 4 decades of really remarkable work in the field of psychology. Her numerous scientific research breakthroughs
ongoing popular publications, well-attended group motivation and training sessions, regular public counseling over radio, TV, and print media, and successful individual counseling practice makes her a uniquely experienced mind muscle personal power expert whose vast success and experience continues to get better as she strives to help people to become happy and to better in simple and common sense ways. Driven by her life's mission of unlocking the many secrets of mind transformation and demystifying everyday success paths for common people, she constantly achieves stellar success across her varied interventions and consultations. We are really privileged to have you today with us, madam. And without taking any more time and depriving who's connected with us today from your valuable guidance, I hand over the floor to you, Dr. Aruna Bruta. Uh, Thank you, ma'am Simi Chaudhary ji. I'm also very grateful to you for giving me this opportunity to connect with you and your fraternity and your colleagues. I'm very, very grateful to the Ministry of Electronics and Technology and also Minister Sahab Dhutre for encouraging this kind of a topic in web series to come forward. This is the need of the hour. Um, I think everybody is in a state of stress, and I think the stress has increased because of your COVID pandemic. But I will say that even before the pandemic, there was an increasing stress in our lives. And I wonder sometimes कि ये stress हमें क्यों होता है? Why are we stressed all the time? Why are we in a hurry? मुझे किसी प्रोफेसर ने कहा था, मैं दिल्ली आता हूं तो मैं ताज्जुब करता हूं कि लोग सड़कों पे इतनी तेज तेज क्यों चल रहे हैं, गाड़ियां इतनी तेज तेज क्यों चला रहे हैं, इतना शोर क्यों कर रहे हैं, इतने हॉर्न क्यों दे रहे हैं, अपनी इग्निशन ऑफ क्यों नहीं करते, सड़क के बीच में खड़े होते हैं अगर रेड लाइट हो और घूं घूं रेसिंग करते रहते हैं, किस बात की जल्दी है? तो उन्होंने प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा, कई बार मैं सोचता क्या सभी हवाई अड्डे जा रहे हैं, आर दे ऑल गोइंग टू द एयरपोर्ट, सबकी फ्लाइट्स में सो रही हैं, और आर दे ऑन देयर वे टू द रेलवे स्टेशन कि रेलगाड़ी छूटी जा रही है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली? But gradually he said that the impact was coming to the smaller cities also, and smaller cities also were experiencing a lot of stress. And the buzz killing word was jaldi karo, jaldi karo, hai toba jaldi karo. And Simi ma'am, you will be surprised that I was working as a psychologist for 2 days in a week in a multinational after I retired from Delhi University Psychology Department. So they said, Dr. Saab, we want to refer our employees to you. पर अगर वो आपके ऑफिस आएंगे तो शायद सारी उम्र ट्रैवल ही करते रह जाएंगे. Why don't you come and join us for 2 days in a week and counseling के लिए? So I said, okay sir. तो ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया. 3 महीने बाद HR के डायरेक्टर थे, तो वो आए मेरे पास और वो कहने लगे, डॉक्टर ब्रूटा एक छोटी सी रिपोर्ट बना दीजिए. मैंने कहा क्या बनाना है? लिख दीजिए कि कितने लोग आए आपके पास हमारी कंपनी से इन 3 महीनों में और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, किस किस डिपार्टमेंट से आए, डेटा मांग रहे थे. मैं तो पहले कहती रही कि मैं ये नहीं लिख सकती कि कौन थे, मैं ये नहीं लिख सकती कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है
बहुत पर्सनल होता है। मैं एक जिस्ट में आपके पास जरूर गुस्ताखी करके आ सकती हूँ कि भाई इनके बॉस के साथ क्या चल रही है, बॉस ऐसा या ऐसी क्यों है या ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट नेम, डिपार्टमेंट एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम ये नहीं बता सकती। पर जो मैं सुनाने जा रही हूँ आपको बात, मैं वो ये सुनाने जा रही हूँ। मैंने कहा कि ये आपको रिपोर्ट सर कब चाहिए? कहने लगे, यू नो आई वांट इट यस्टरडे। मैंने कहा मतलब कि मुझे तो ये जो कल बीत गया तब चाहिए थी, तो मुझे आज बना दीजिए। मैं कहा मैं ऐसे काम नहीं करती। हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल अगर मैं आपको एक हफ्ते में रिपोर्ट बना दूं या 2 दिन में बना दूं, लेकिन मैं आज शाम को बैठ के ये रिपोर्ट नहीं लिख सकती। आपको क्या होगा, कंपनी में क्या आग लग जाएगी, या आपकी डिमोशन हो जाएगी, या मंत्री साहब की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। सॉरी, ये जो एक सिमी मैम हमने एक हरी जल्दी क्रिएट किया हुआ है, this word is killing us. So if we learn to relax, I think that's the first word I would like to use, that we all need to work. We all need to work. We all need to take our work seriously. We all need to follow office timings, home timings, eating timings, sleep timings. Everything has to be in a balance. लेकिन ये जो हाय तौबा हम मचा के बैठे हुए हैं कि जल्दी करो, ये रिपोर्ट आज ही जानी है, ये रिपोर्ट ऐसी होनी है, तो मुझे लगता है कि एक हमने आर्टिफिशियल स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है अपने लिए। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इट हैज टू गो। मैं कुछ साल पहले यूएस गई और मैं कंपनीज विजिट कर रही थी जस्ट टू स्टडी वर्क कल्चर, कि वर्क कल्चर क्या है। तो मैंने देखा कि 5 बजे नहीं तो 5:30 बजे जितने, अब मैं नाम क्या लूं, वाइट्स हैं, सब घर चले गए हैं। यानी कि जितने उनके अपने ओरिजिनल सो कॉल्ड वर्ड है, ओरिजिनल हैं लोग, वो चले गए हैं। और जितने ब्राउन्स हैं, एशियंस हैं, वो सब बैठ के काम कर रहे हैं। 9 बज गए, 9:30 बज गए, ये क्या वर्क कल्चर है? मैं इसको कंट्रास्ट करके देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारे मल्टीनेशनल्स में बॉस भी बैठा रहता है 9 बजे तक, 8 बजे तक। और अब जो जूनियर्स हैं वो कहते हैं मुझे, डॉक्टर साहब घर कैसे जाए, बॉस नहीं जा रहा तो हम जाते, अच्छे नहीं लगते। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि क्या बॉस घर से निकाला हुआ है? क्या उसको कोई कमिटमेंट नहीं है अपने बच्चों के लिए? क्या उसको अपनी मेंटल हेल्थ की फिक्र नहीं है? क्योंकि अगर आप ये सुनते हैं बच्चों के लिए, ऑल प्ले एंड नो वर्क मेक्स जैक अ डल बॉय, ओके, but all work and no play also makes Jack a dull boy. You become dull either ways, right? तो इसका क्या अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि अति हर चीज की बुरी है। सो सिमी मैम ने जो वर्ड यूज किया, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क एंड लाइफ इज अ वेरी बिग वर्ड, वेरी बिग वर्ड एट एनी एज। अगर आप यूथ हैं, अनमैरिड हैं, आपने घूमने जाना है, आपने जिम में जाना है, आपने डांस पार्टीज में जाना है, आपने गर्लफ्रेंड्स बनानी, बॉयफ्रेंड्स बनानी, आपने अपनी बीमार माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है, आपने अपने पिता को कहीं चेकअप करवाने लेके जाना है, आपने अपनी दादी की दवाई खरीदनी है, आपने अपने लिए कोई कपड़े खरीदने हैं, या आप अपने आप बैठकर कोई डांस सीखना चाहते हैं, कोई पेंटिंग करना चाहते हैं, सेल्फ का कोई एक्सप्रेशन चाहते हैं, उसके लिए सेल्फ के लिए भी तो कोई टाइम निकालना पड़ेगा ना। सो अगर अगर आपको पिकअप है या आपका रीचिंग पॉइंट है कि भाई मुझे 8:30 ऑफिस पहुंचना है,
या 9:30 ऑफिस पहुंचना है, तो वो तो आपका फिक्स्ड है, लेकिन घर वापस आना आपका फिक्स्ड नहीं है। आई थिंक ये वर्क कल्चर खराब है। यहाँ पे हमको देखना चाहिए, एनालाइज करके, स्टडी करके मनोवैज्ञानिक के पास, कि ये वर्क कल्चर में क्या त्रुटियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नहीं बन रहा। और यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि मैं हैरान थी जब सिमी मैम ने मुझे आकर कहा कि डॉक्टर ब्रूटा आप बोलेंगी, तो मैं कहूँ साइकोलॉजिस्ट की क्या कदर है हमारी कंट्री में। साइकोलॉजिस्ट की ये कदर है, अरे ये पागलों का इलाज करती है। मतलब आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आपकी सिर दर्द हो रही है, आप जनरल फिजिशियन को दिखाते हो या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हो, किडनी वाले को दिखाते हो, लेकिन जहां साइकोलॉजिस्ट की बात आई, कहते मैं कोई पागल हूं। ऐसे बोलते हैं आप कि मैं कोई पागल हूं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं सिमी चौधरी मैम कि मेरे को बदन में दर्द हो रही है, मेरा शरीर टूट रहा है, तो मैं क्या करूं, तो बिना मेडिकल डिग्री लिए आपको समझ में आ जाती है कि ये फ्लू है, ये वायरल है, ये डेंगू है, ये स्वाइन फ्लू है। अब तो आप ये कोविड भी समझ गई हैं कि ये भी हो सकता है। इतनी जल्दी आप सब कॉम्प्रिहेंड करती हैं कि क्या शारीरिक बीमारियां हैं, आप सलाह भी दे देंगी, एंटीबायोटिक खा लेना, पूरा टाइम खाना, बीच में मत छोड़ देना, बिना मेडिकल डिग्री के ये नॉलेज आपको है। और आपने कहा डॉक्टर ब्रूटा किसी डॉक्टर को मिल लो ना। आपने मुझे ये नहीं कहा कि कैंसर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिमी मैम मेरा मेरा दिल नहीं लग रहा है, सिमी मैम मेरी तबीयत खराब है, सिमी मैम मुझे नींद नहीं आ रही है, सिमी मैम मुझे बहुत ट्रेजिक और नेगेटिव ख्यालात आते हैं, मुझे डर लगता है, मुझे ऑफिस वालों से डर लगता है, तो कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकाइट्रिस्ट बताइए मुझे। तो आप कहते हो पागल है, आप वहां पहुंच गए। जब मुझे फ्लू है, वायरल है, वहां आप कैंसर पे नहीं पहुंचे, ट्यूबरकुलोसिस में भी नहीं पहुंचे। लेकिन यहाँ आप एकदम बोलोगे, अगर मैं कहूंगी साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकाइट्रिस्ट चाहिए, तो आप सीधा वो पागलपन पे पहुंच जाओगे। क्या हम अपने आप से इतना डरते हैं? क्या अगर हम ये कह दें कि मेरा मन, मेरी सोच दुरुस्त नहीं है, मुझे चिड़चिड़ हो रही है, मुझे क्रोध बड़ी जल्दी आता है, मैं रो बड़ी जल्दी लेता हूँ या लेती हूँ, मैं अपशब्द इस्तेमाल कर लेती हूँ मीटिंग्स में और उसके बाद मुझे पछतावा होता है, तो क्या मैं पागल हूँ? तो क्या इसको नहीं ठीक करना? इसका मतलब है हमारे अंदर पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे अंदर इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि हम अपनी इच्छाओं को, हम अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और सबके सामने हम बरस पड़ते हैं। तो क्या उसका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए? उस समय आप कह दोगे अरे इसका बाप भी ऐसा था, इसका दादा भी ऐसा था, यानी कि यू एक्सेप्ट इट। और इलाज के तौर पे अच्छा उसको अपना हाथ दिखा लो, अच्छा दान करा लो, अच्छा ये वाला पत्थर की अंगूठी पहन लो। तो आपकी सोच में, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके वैल्यू सिस्टम में और आपकी एजुकेशन में क्या बैलेंस आया? वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ से आना है जब सोच में ही बैलेंस नहीं है? मैं बहुत सारे डिटेल्ड टॉपिक्स को सिर्फ टच करके अभी छोड़ रही हूँ कि मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप पहले सोचिए कि मैं ऑफिस में कितना टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। जल्दी शब्द बीमारी का शब्द है, ठीक है। फिर मैं ये आपको बता रही हूँ कि हमारा बिलीफ सिस्टम कहाँ है। ये अंगूठी पहन लो, ये पहन लो, तुम बच जाओगे, राहु केतु का मेल नहीं हो पा रहा, शनि का प्रकोप है, ये कर लो,
कई बार मैं कहती हूँ अगर आपने बाईपास सर्जरी करानी है तो क्या आप सर्जन से डेट ना लेके तो अपने हाथ दिखाने वाले को या अपनी जन्म पत्री कुंडली दिखाने वाले से डेट लेते हैं और तब सर्जन को डेट देते हैं, उनसे लेते नहीं है? क्यों हम इतने डरे हुए हैं कि हम हर चीज से जो अपने अंदर कमियां हैं, त्रुटियां हैं, हम हर चीज से भागते हैं, उसको ऊपर चद्दर बिछा के या कारपेट बिछा के उसको ढक देते हैं, एड्रेस नहीं करते। सो उससे भी हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता है अगर हम अपने अंदर झांकें। सो वर्क क्लाइमेट, वर्क कल्चर, वर्क टाइमिंग्स, ड्यूटीज टुवर्ड्स फैमिली, ड्यूटीज टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, अगर ये ही नहीं पूरी करने को आपको टाइम मिलता तो क्या आप टेंस नहीं रहेंगे? क्या आपका मानसिक तनाव बढ़ नहीं जाएगा? अब आई बात, मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए थे, साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। बहुत से लोग कहते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास तो वैसे ही पागल आदमी जाते हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा वो जो दवाइयां देता है, मैंने कहा हाँ, तो वो दवाइयां तो बड़ी खराब होती हैं, वो तो सुला देती हैं। तो टेक्नोलॉजी में अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो क्या आप कंप्यूटर शट डाउन नहीं करते चंद घंटों के लिए? क्या उसके अंदर पेचकस लगा के नहीं देखते कि कहां से क्या आया? तो इसी तरह अगर आप अपने थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, अपने बिलीव्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, अपनी एंजाइटी को नहीं कंट्रोल कर सकते, अपनी लालच को, ग्रीड को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो क्या आपको दवा नहीं खानी चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं 3 रातें हो गए मैं सोई नहीं या सोया नहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में भयंकर ख्याल आते हैं, पता नहीं मेरे अवचेतन मन में क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में, कि मुझे भयंकर सपने आते हैं जैसे कोई मुझे मार रहा है या मैं कहीं गिर रहा हूँ या मदर की डेथ हो गई है या फादर की डेथ हो गई, ऐसे अलग अलग तरह के विचार आते हैं, तो मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब्ड होती है। क्या ये अवचेतन मन की अवस्था आप ऐसे ही बर्दाश्त करते रहोगे अंगूठियां पहन के? आप थोड़ा सोचिए कि ये क्या हो रहा है हमें। इससे तो अच्छा ये है कि हम कुछ दवा लेके चैन से रात को सोएं, लेकिन साथ साथ साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग, साइकोथेरेपी कराएं और उसके साथ शेयर शेयर करें कि हमारे को क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं मन में और उनको काबू कैसे करना है। ये बहुत जरूरी होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनेगा, बल्कि स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। अगर आप किताबी डेफिनेशन लें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस क्या है? कोई ऐसी एनवायरमेंटल सिचुएशन है, कोई ऐसी बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जिस जो आपके शरीर को, मन को, अवचेतन मन को थ्रेट कर रही है और आप डरे हुए हैं। दिस इज स्ट्रेस। बुखार इज ए बॉडी स्ट्रेस। सम इलनेस, फिजिकल, is a body stress. There are economic stresses, financial stresses, there are political stresses. बहुत से stresses होते हैं। There are religious stresses. इससे भी हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, तो हमारी वर्क एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आती है। हम एफिशिएंट नहीं हो सकते, हमारे काम में एरर्स आनी शुरू हो जाएंगी, गलतियां ज्यादा शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि यूरिनेशन बढ़ जाए, आप एंजाइटी की वजह से दौड़े दौड़े बाथरूम बार बार आधे आधे घंटे, पौने पौने घंटे, एक एक घंटे में जाते रहें और आप बहुत बार अपना यूरिन टेस्ट कराएं, कुछ नहीं निकलता।
but it is a part of anxiety. It could be a part of inferiority leading to anxiety, leading to stress, leading to excessive urination. Could lead, ये एक एग्जाम्पल यूरिनेशन का मैं दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। एक आदमी आया फाइल लेके आपके डेस्क के ऊपर और आप उसे कहते हो और ले आया, पटक दे, सिर पे रख दे मेरे, सिर पे रख दे मेरे। वो कहता है यार बाबूजी को क्या हुआ, सर को क्या हो रहा है, ये सर इतने खफा क्यों घूम रहे हैं, बीवी से लड़के आए हैं, ये नहीं पता, बीवी से नहीं लड़के आए, बॉस से डर रहे हैं, कोलीग से डर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह बोलता है, वो मक्खन लगा लेता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे टाइम नहीं मिलता, बीवी जूते मारती है, बीवी जो है वो बेचारी अगर कामकाजी है तो वो छुट्टी नहीं ले पाती, सारे ऑफिस के मर्द कहते हैं बस इसीलिए तो हम औरतों को रखते नहीं है, क्योंकि औरतों को घर की पड़ी रहती है। तो भैया आप चले जाओ, आप देख लो बच्चे को, आप ले जाओ डॉक्टर के पास, सारी डिटेल में बात करके आओ। कई फादर्स हैं, मदर अंकल्स हैं, ब्रदर्स हैं जो अपने बच्चों को, घर के छोटों को लेके जाते हैं अगर, या बड़ों को, हाँ डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, कितनी बार खानी है, पढ़ने की कोशिश करो ना, हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही डॉक्टर की, तो भैया तुम किस लिए गए थे, तुम सारी चीजें क्यों नहीं समझ के आए, इसलिए नहीं आए। एक, मैं मर्द हूं, दूसरा, मैं मर्द हूं तो मैं क्यों लेके जा रहा हूं, मेरी बीवी क्यों नौकरी कर रही है, तीसरा, बॉस ने आज जरूर कोई ताना मारना है, चौथा, मेरे पीछे से मेरे कॉलीग ने मक्खन लगा दिया होगा बॉस को। क्या मैं शो कर रही हूँ, ये भी कंपेटिटिवनेस इतनी बढ़ गई है कि हम या तो अग्रेसिव हो जाते हैं और या हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से दब जाते हैं। तो कौन से वर्क लाइफ बैलेंस की मैं बात करूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लड़कियां नौकरी कर रही हैं, मुझे कहती हैं मैम आना तो अपने हाथ में है, जाना वापस अपने हाथ में नहीं है, मम्मी डांटती हैं, पापा डांटते हैं, उनका राइट है, भाई भी डांटता है, रौब जमाता है, दादी भी कहती है ये हाथ से निकल गई है, रात को देर देर से आती है, वहां काम करके आओ, ये सोचते हैं पार्टियां अटेंड करके आई है। सो जेंडर्स में भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रोल्स हमारे चल रहे हैं, ये नहीं मैं कह रही कि पुरुष बुरा है या औरतें बुरी हैं या पुरुष विवश नहीं है या औरतें विवश है, नहीं, आई एम गिविंग यू के हर एक के जेंडर के अपने अपने स्ट्रेसेस तो हैं, यू कांट ओवरनाइट चेंज देम, पर क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे हाथ में है वो है टेलीफोन। दिस टेलीफोन टेक्स द टोल ऑफ आवर लाइफ। 11 बजे रात को आपका दिल करता है देख लूं बॉस का कोई मैसेज तो नहीं आया, देख लूं कोलीग ने कोई रिपोर्ट तो नहीं भेजी, देख लूं कोई वेबसाइट जाके देख लूं, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट देख लूं, अच्छा एक मूवी देख लूं, दिन भर में टाइम नहीं आता, अच्छा गाने सुन लूं। बच्चे देख रहे हैं कि आप क्या देख रहे हो? डोंट थिंक बच्चे बुद्धू हैं, आज का बच्चा आपका बाप है। हम क्या मॉडल बन रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वहां भी मानसिक तनाव हम क्रिएट कर रहे हैं, और अपने दिमाग का, अपने मन का और अपनी ब्रेन हाइजीन का हम सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि हम ही अपनी स्लीप छीन रहे हैं। अब आई बात कि बॉडी एंड माइंड की सिंक्रोनाइजेशन जो है ये बहुत लेवल्स पे होती है टू क्रिएट वर्क एफिशिएंसी। सबसे पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आता वर्क एफिशिएंसी होती क्या है। जो आदमी महीने में रिपोर्ट बना के दे, क्या वो वर्क एफिशिएंट है? नहीं। क्या आदमी नींद खराब करके और 12 घंटे में अपना हार्ट अटैक करके रिपोर्ट बना के दे, वाह वाह बढ़िया बढ़िया, वो भी गलत है। संतुलन बना के चलें
कि ये रिपोर्ट पॉसिबल है, इतनी डेटा इकट्ठा करना, इसको समराइज करके देना, इसके पॉइंटर्स बनाना, क्या ये सही है, फिर क्वालिटी ऑफ वर्क, क्या ये सही है, ये सारी बातें अगर हम ध्यान में दें। लेकिन मैं एक एंगल लाना चाहती हूँ। सिमी मैम से मैंने एक वर्ड अभी इंट्रोडक्शन में सुना, विजिलेंस डिपार्टमेंट। तो मैं वो देखना चाहती हूँ कि क्या हम संतुलन बना सकते हैं अगर हमें अपना इम्पल्स, अपनी इम्पल्सेस, अपनी चाहना, अपनी टेम्पटेशंस, क्या इन पे हम काबू कर चुके हैं? अगर हम अपना खाना देखें तो हम बैलेंस डाइट नहीं खाते, तो हम बैलेंस फूड नहीं लेते, हम बैलेंस्ड आहार नहीं लेते, तो बैलेंस्ड लाइफ कहाँ से लेंगे? फिर हम वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ से बनाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर एक वैल्यूज और एक नीड्स, ये उथल पुथल हुए हैं। अगर आप 20 साल पहले भी पीछे जाओ, अभी से 2020 को लेके 2000 में सिर्फ रहो, 1999 2000 में, फिर भी मटेरियलिस्टिक वैल्यूज कम थी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली कम था। अगर आप 1992 में देखो कि हमारी वैल्यूज क्या थी, हमारी नीड्स क्या थी, तो भी इतने मटेरियलिस्टिक हम नहीं थे जितने आज हैं। हम कंपेटिटिव थे, लेकिन अगर आप डेटा लें कि अरुणा ब्रूटा ने, अरुणा ब्रूटा के बड़े बेटे ने, अरुणा ब्रूटा के छोटे बेटे ने, अरुणा ब्रूटा के पोते ने, अरुणा ब्रूटा की पोती ने, बाकी सब छोटे हैं, चलो इनकी लें, तो कितनी जॉब्स किसने कब कब बदली? अरुणा ब्रूटा ने नहीं बदली, ब्रूटा साहब ने नहीं बदली। वी आर ओल्ड टाइमर्स। हमारी ये थी, नहीं ऐसे कैसे हम जॉब छोड़ देंगे, नहीं बॉस क्या सोचेगा, कि हमारी लॉयल्टी खत्म हो गई है। किस मुंह से हम कहेंगे कि नहीं हम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वो सैलरी ज्यादा दे रहा है? लेकिन बड़े लड़के ने कहा आई वांट टू चेंज माय जॉब, वहां सैलरी ज्यादा है, ठीक है, तो उससे फिर मैं बच्चों की फीसें बड़े आराम से दे दूंगा। वहां से छोटे ने कहा अरे तो क्या हुआ अगर 6 महीने पहले मैंने ज्वाइन करा था, छोड़ दे, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, वहां मुझे 10,000 रुपए की जंप मिल रही है, उससे मैं लैपटॉप खरीद सकता हूँ, उससे मैं बहुत सारी चीजें, मैं अपनी कार भी बदल लूंगा, मैं एक फ्लैट खरीद लूंगा, मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, वो ज्यादा में बिक जाएगा, आजकल प्रॉपर्टी की बहुत है, आजकल मीन्स तब जब वो कह रहा था, ठीक है। तो आई थिंक इट वॉज समथिंग डिफरेंट। ग्रैंडसन आके कहता है अब 2 साल हो गए हैं एक जगह, मैं छोड़ रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, है तुम्हारा बॉस क्या कहेगा? इतना उसने तुम्हें ट्रेन किया, अपने सारे शिकंजे तुम्हें बताए, अपने गुट तुम्हें दिए, बहुत अच्छी तरह उसने तुम्हें ग्रूम किया, आज तुम 4 बातें करने लायक हुए हो तो तुम उसे छोड़ के 4 पैसों की वजह से चेंज कर रहे हो। What is it? हमारी प्रायोरिटी became इकोनॉमिक प्रायोरिटी, मटेरियलिस्टिक प्रायोरिटी, ये हमारी प्रायोरिटी बदल गई। सब्सिक्वेंटली अभी मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रही हूँ। अगर आप पॉलिटिक्स में भी देखें तो दल इधर बदल, उधर बदल, इधर बदल, उधर बदल, जो कुछ भी है। जबान देखिए तो बदल गई हमारी, कि हम खुलेआम हेट स्पीचेस देते हैं, हम खुलेआम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, पर अच्छे शब्दों से ब्लेम नहीं करते। चोर, उचक्का, बदमाश, इस तरह से हम ब्लेम करते हैं। हम अपने बड़ों का भी लिहाज नहीं करते जो नहीं रहे, क्योंकि मैटर ऑफ फैक्ट होना है, एनालिसिस करना है। तो क्या होगा
जिंदगी का एक जो मूल है, प्यार दे प्यार ले, प्यार कर प्यार ले प्यार दे, इसकी कीमत खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं पता आप कितनी बीमार हैं, मुझे ये पता है कि आपकी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई और आप घर जाके कहते हो किस तरह सफेद खून है बॉस का। वो कहता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि तू बीमार है और मैं हॉस्पिटल से ड्रिप चढ़ा के आई हूँ। सो ये वैल्यूज जो हैं, जो हमारे जीवन का एक आधार है, वैल्यू इज ए जनरलाइज्ड एटीट्यूड with which we behave, our attitude towards money, our attitudes towards wealth, our attitude towards property, our attitude towards health, our attitude towards relationships, हमारी values क्या हैं। तो क्या हुआ कि economic values and materialistic values came on top, absolutely on top। तो वो हमारा सारा समाज का एक प्रतिबिंब ही बदल गया। You know what the samaj was before and what the samaj is today, because पाए लागे पेरी पहना से बदलते बदलते हाय हाउ आर यू, क्या हो रहा है, हेलो जी, सब बड़े छोटे। मैं यूएस गई ना पढ़ने, तो मेरे प्रोफेसर और मैं कहूँ यस सर आई विल डू इट, ही सेड डोंट कॉल मी सर, आई एम नॉट योर सर, you call me by my first name. I said I can't do that. अच्छा, मेरा बेटा था उस समय 5 साल का, वो नेबर को कहने लगा सेडी आंटी कैन आई प्ले विद योर चिल्ड्रन, शी सेज आई एम नॉट योर आंटी, कॉल मी सेडी। मैंने उसको समझाया क्या सिखा रही है उसको। 2 साल बाद हमने वापस घर जाना है, हमारे प्रोफेसर को ये बाय फर्स्ट नेम कहेगा, हरीश तेरा क्या हाल है। अरे, जो एक इंडियन सोसाइटी है, जो हर चीज वेस्टर्न से लेके यहाँ प्रतिबिंब बना रही है, वो अपने कल्चर का उथल पुथल कर रही है। वर्क लाइफ बैलेंस, इसके बीच में मैं अब वैल्यूज की बात करते करते मेंटल हेल्थ पे आऊंगी। मैंने वर्ड यूज किया है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है। आपने भी सिमी मैम जब जॉब ज्वाइन किया होगा तो आपको कहा गया होगा फिटनेस सर्टिफिकेट देना ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ। कौन सी फिटनेस? फिजिकल फिटनेस। टाइफाइड नहीं है, टीबी नहीं है, पोलियो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, निमोनिया नहीं है, ठीक है, लिवर इनलार्ज नहीं है, हाथ पैर ठीक है, हड्डियां ठीक है, ठीक है, चलो 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 आ जाओ जॉब पे। एज इफ के आप सामान ढोने वाला कोई मजदूर हायर कर रहे हैं कि भाई 10 किलो 20 किलो 80 किलो उठा लेगा या नहीं उठा लेगा। लेकिन आपने मेंटल हेल्थ फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो आजकल काम इंडिविजुअल से नहीं होता, टीम वर्क होता है। There are teams that are doing one kind of project, another team is doing another kind of project. Within that project हम उसको ये assign करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। Then team leaders meet. Team leaders meet and then they meet the junior manager, then they meet the senior manager, then they meet the GM, etc. etc. लेकिन टीम वर्क करने लायक हम रहे हैं? छोटा बच्चा अपनी नोटबुक नहीं लोन करता कि मुझे बुखार था, अपनी नोटबुक दे दे मैं नोट्स उतार लूं। नहीं, मैं लाया नहीं, मैं भूल गया। माँ सिखाती है या फादर सिखाते हैं या घर वाले बड़े भाई बहन सिखाते हैं, तू मत दे, उसके पास तेरे वाले नोट्स आ जाएंगे, उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। कंपेटिटिवनेस, मटेरियलिज्म, बड़े छोटे का लिहाज नहीं, नॉट एट ऑल। सो ये किस चीज का आया लालच? इम्पल्स कंट्रोल। उसके पास नई गाड़ी है, मुझे भी चाहिए। उसके पास अब बड़ी कोठी है, मुझे भी चाहिए, मैं तो फ्लैट में रहता हूँ।
उसका ड्राइंग रूम एयर कंडीशनड हो गया है, मम्मी पापा मेरा भी करो। अब पापा कहेंगे आई कांट अफोर्ड बिजली का बिल। अरे वो जो चेक करने आता है मीटर, उसको 1000 रुपए महीना दे दो, बंद ही मत करो एसी सारा दिन। तो क्या हुआ, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर हो गया। हमें अपनी इम्पल्सेस को, लालच को कंट्रोल करना ही नहीं आया। तो हमने क्या किया, एक एयरलाइन खरीदी, उसके बाद दूसरी एयरलाइन खरीदी, इतने एयरक्राफ्ट लिए, कहाँ से लिए, उससे लोन लिया, उससे लोन लिया, उससे लोन लिया, और भाग लिए। दूसरे ने कहा मैं ये डायमंड पहना, अरे 4 कैरेट का, अरे दुनिया में 10 कैरेट का नहीं है, दुनिया में 20 कैरेट का नहीं है। ये क्वीन क्या समझती है अपने आप को, मेरे को तो क्वीन से बड़ा कोहिनूर चाहिए। दुनिया देखे मुझे मैं कौन हूं। दुनिया इसलिए ना देखे कि मैं सत्य बोलता हूं। दुनिया इसलिए ना देखे कि मैं अच्छा पति या पत्नी हूं। दुनिया इसलिए ना देखे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। दुनिया इसलिए ना देखे कि मैं सबकी मदद करता हूं, मैं सबको हेल्प करता हूं, मैंने बहुत से स्कूल कॉलेज खुलवा दिए, मैं फ्री जाके पढ़ाता हूं। ये दुनिया ना देखे। दुनिया ये देखे, वहां से मैं निकलूं, दुनिया देखे अरे ये वो है, कौन है जिसका वैल्यू सिस्टम सिर्फ मटेरियलिज्म में है। और अगर दुनिया सिर्फ इसलिए देखे तो वो भरपूर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से है। ये जो एक्चुअल में फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो एक्चुअल में दान करते हैं, मैं कई बार ऐसे हॉस्पिटल्स में जाती हूँ जहाँ कमरे के बाहर लिखा होगा ये कमरा फला प्रेमवती ने डोनेट किया, दूसरे ने कहा लीलावती मेरी दादी ने डोनेट किया। तो आपने ढंडोरा पीटा या आपने दान दिया? दान तो गुप्त अच्छा होता है। ऐसी हिंदुस्तान में सिर्फ वैल्यूज थी, वेस्ट में नहीं है ये वैल्यूज। आप देखिए कि वहां पे जो वो देते हैं स्टाइपेंड, जिनको नौकरी नहीं मिलती, दे डोंट कॉल इट स्कॉलरशिप स्टाइपेंड, दे डोंट, दे कॉल इट सोशल सिक्योरिटी। दुनिया ये ना कहे ये भूखा है, ये गरीब है, सोशल सिक्योरिटी, राइट। लेकिन वहां हर चीज मटेरियल में तोली जाती है। लेकिन यहाँ आप दान देते हैं, वहां भी अगर अपना नाम करना है तो वो तो दान नहीं है ना। दान है जैसे आजिम जी देते हैं, प्रेम प्रेम जी आजिम, वॉट एवर ही इज, या वो देते हैं। और भी बहुत हैं जो देते हैं और कभी शो भी नहीं करते कितना दान दिया, कितना नहीं दिया, किसको दिया, कहाँ करा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अरुणा ब्रूटा जैसे खराब लोग हैं जो कहेंगे अरे इनकम टैक्स से बचने के लिए दिया होगा, ऐसे भी लोग ताने मारते हैं। कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं, क्यों नहीं है, अंदर से जलन हो रही है। वो दान करता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, अच्छा अब मैं वहां से उठाता हूँ, वहां से। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, आपकी ग्रीड आपको मौका नहीं देती कि आप सच्चाई की तरफ जाएं, आप लालची बनते जा रहे हैं। तो बच्चों को क्या मॉडलिंग दी है आपने? बच्चों को ये मॉडलिंग दी है, वाइफ फोन करती है, सुनो आती बार ना कहीं से स्टेशनरी की दुकान से बच्चे के लिए इतने रजिस्टर ले आना, ये रिम कागज का ले आना, ये इंक ले आना, ये कलर्ड बॉल पॉइंट्स ले आना, नहीं तो कल प्रोजेक्ट जाना है उसका बन नहीं सकता। इधर से क्या जवाब देता है, अरे क्या खरीदना है, ऑफिस में बहुत सारी स्टेशनरी पड़ी है, मैं उठा लाऊंगा। व्हाट इज दिस? वो ऑफिस की स्टेशनरी है, आपके बच्चे के लिए नहीं है। पर हम बड़ी प्राउडली अपने ही रिम में से आधा रिम उठा के घर ले आते हैं, बच्चे को कहते हैं ले जो प्रोजेक्ट बनाना है बना ले। सो दिस, यहां से शुरू हुई बात, करते करते वहां से लोन लिया नहीं लिया, किसी की प्रॉपर्टी मार ली, फर्जी नाम से ले ली, कहाँ से ली, पटवारी को कुछ खिलाया, वो ट्रांसफर करवा ली, अगले को पता ही नहीं चला कि मेरी जमीन बेच दी पटवारी ने। व्हाटएवर, करते 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 क्या हुआ, कनॉट प्लेस की आधी बिल्डिंग खरीद ली, थोड़ी और शॉपिंग मॉल्स की बिल्डिंग्स खरीद ली। बोले ये है तो
क्लर्क है या ये सुपरिंटेंडेंट है, तो घड़ी देखो तो इसने रोलेक्स की घड़ी डाली हुई है 10 करोड़ की, ये की, और वो कहता है कि ये मेरी घड़ी तो 1 करोड़ रुपए की मैं लाया हूँ, इसमें हीरे जड़े हुए हैं। क्या दिखा रहे हैं? अपनी इंफीरियोरिटी प्लस अपनी मानसिक बीमारी। मैं बंद करने से पहले ये जरूर कहूंगी कि मानसिक सेहत का इतना बुरा हाल है कि जेल भी जो लोग जाते हैं जिनको निमोनिया है, उनका चेकअप करा के डॉक्टर भी भिजवा देंगे, दवाइयां भी भिजवा देंगे। फिजिकल बीमारी है। ओह, तो क्या हुआ, मुजरिम है पर खांसी कर रहा है यार, दवाई दो, कफ सिरप भी पहुंचा दो, सब कुछ। लेकिन जिनकी मानसिक सेहत है, जो ऐसे ऋषि मुनि स्वामी बने हुए हैं, अब जेलों में हैं, उनको नहीं देखते कि भाई उनको साइकाइट्रिक दवाई मिलनी चाहिए। अगर उनकी पनिशमेंट कम्यूट हो गई, वो बाहर आ गए, फिर वही कांड करेंगे। उनको थेरेपी नहीं पहुंचाई। मैंने ये नहीं कहा उनको छोड़ दो, नो नेवर, मैंने कभी कहा ही नहीं उनको छोड़ दो, पर रियलाइज तो करो कि वो ऐसा कांड क्यों करा उन्होंने, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। तो करना क्या चाहिए? अब आया निदान कि करना क्या चाहिए। क्या आपने अपने 24 घंटे डिवाइड करके देखा कि ईश्वर जी ने इतना अच्छा सुडौल शरीर दिया, उसकी मेंटेनेंस में क्या करता हूँ? गाड़ी की सर्विसिंग कराया होगा, अपनी सर्विसिंग कभी नहीं करते आप अपने को प्यार ही नहीं करते, ये भी मैं बता दूं। आप अपने को प्यार ही नहीं करते, आप दूसरों से जल मरने से फुर्सत ही नहीं है आपको। तो आपने क्या सैर करी, आपने दौड़ लगाई, आपने प्राणायाम किया, प्राणों का व्यायाम, प्राण, सांस जो आप ले रहे हैं। अभी कोई गिर जाए तो पहले सांसों के आगे हाथ रख के देखते हो सांस ले रहा है कि नहीं, प्राण है कि नहीं, उसका कोई व्यायाम नहीं हम करते। फिर कहते हैं सांस चढ़ रहा है, फिर कहते हैं कि अंदर पोल्यूशन हो गया, फलानी मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं किया, फलानी मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं किया। प्रदूषण जो हम फैला रहे हैं, उसको हटाने के लिए हमने क्या किया एनवायरमेंट में, और अपनी बॉडी में हमने क्या किया अपनी मेंटेनेंस के लिए, ये क्या किया। हाँ ठीक है, सुबह कौन उठे, किसने कहा 4 बजे उठो, हम भी जानते हैं लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने सैर करनी है तो आप करो, ऑफिस बिल्डिंग में 10 चक्कर लगा लो लंच से पहले, वो ही आपका व्यायाम हो जाएगा। इतना करो, बैलेंस करो, फिर फूड के साथ सात्विक खाना खाओ। अब आओ किसी काउंसलर के पास, अपनी हेट्रेड, अपनी जेलसी और अपनी लालचों को कंट्रोल करने के लिए आप ये जितने मुजरिम पकड़ते हो, उसी में किसी मुजरिम ने कहना है 10 करोड़ तू रख, तो सारी विजिलेंस खत्म, कोई विजिलेंस की जरूरत नहीं, अच्छी रिपोर्टें आ जाएंगी। So I think we need to understand कि work-life balance for work efficiency and overcoming stress हमारे हाथ में है। अगर हम मानसिक सेहत को शारीरिक सेहत से मानसिक सेहत को शारीरिक सेहत से बैलेंस करके दोनों का रख रखाव रख के आचरण ठीक रखें। आचरण में सोच आती है। अगर अपने अंदर लालच आ रहा है, गो सी अ साइकोलॉजिस्ट। मैं अपना प्रचार नहीं कर रही, मैं कितनों को देख लूंगी। आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर की मेरी 400 की ओपीडी चलेगी, मैं 6 नहीं तो 9 देख लूंगी एक दिन में। लेकिन आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाओ और उसके साथ संपर्क रखो। पुराने जमाने में एक फैमिली पुरोहित होता था, जो आता था, पंडित जी आते थे, बहुत सी शिक्षा देके जाते थे। अब साइकोलॉजिस्ट आते हैं, पर आप सोचो कि वो पागलों का इलाज करते? सॉरी, नहीं।
इसके साथ अब मैं स्टॉप करती हूँ। मैं बहुत बोली हूँ, टॉपिक बहुत वास्ट था। किसी को मेरी बात नापसंद आई हो तो मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। लेकिन मेरा मकसद नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूँ। मेरा मकसद है कि आप सबको मैं खुश देखूँ, संतुलित देखूँ, किसी आचरण में फँसने की कोशिश ना करें। हमारे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हमने देश को आगे ले जाना है। कैसे ले जाना है? बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, प्रॉस्परस कंट्री इन द वर्ल्ड, सुख में प्रॉस्पेरिटी। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Bruta. This has really been such an enlightening discourse with you. आपने entire spectrum of life cover किया है, Dr. Bruta, but फिर भी मैं कुछ focus areas जो हमारे audience की तरफ से भी आ रहे हैं, उन पे एक re-emphasis के लिए आपसे दोबारा निवेदन थैंक जरूर यू मैम। करूंगी। जी मैम। एक एरिया जो बहुत ही वरिंग फैक्टर है, इमर्ज कर रहा है, वो है हमारे देश के यूथ के बारे में, जहां हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू ईज, टू कन्वीनियंस, स्मार्ट होम, स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज, एवरीथिंग। जैसा कि आपने भी कहा था कि मोबाइल में भी एक सबसे बड़ी रूट कॉज है आजकल हमारे शांत ना रहने का। टीनेजर्स में, एडोलेसेंट्स में, स्पेशली गर्ल्स के लिए सोशल मीडिया इतना प्रोमिनेंट, इतना इम्पोर्टेंट, इतना परवेसिव हो गया है कि कहीं ना कहीं एक सेल्फ परमिटेड इरोजन ऑफ प्रिवेसी महसूस की जा रही है, और एक डिजिटल एडिक्शन या डिजिटल toxicity, if I may say so. That's the term used many a times by people now when we are talking of ease that is caused by technology. उनके लिए, आपका एडोलेसेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए स्पेशली क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? शुक्र है कि आपने ऐसा सवाल पूछा, क्योंकि आज का जो ओवरऑल टॉपिक था वो इतना एग्जॉस्टिव था कि बीच में रह गया। थोड़ा मैं इसलिए भी छोड़ दिया कि जितने हमारे कॉलीग्स सुन रहे हैं, सब कहेंगे लो जी औरत है तो बच्चों पे ही आ गई है। पर ये नहीं जानते कि हम रोल मॉडल्स हैं अपने बच्चों के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक फादर घर आए ऑफिस से, हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा हुआ है, घंटी घर की बजाई और साथ ही में टेलीफोन बज गया। अंदर से आवाज आई, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। और वो कह रहे हैं, हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, रिपोर्ट तो तैयार कर ही आया था, बस टाइप करनी रह गई है। बच्चे कह रहे पापा आ गए, पापा। पापा कह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हो? मेरा घर आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा काम इम्पोर्टेंट है, मेरा टेलीफोन अटेंड करना इम्पोर्टेंट है, अटेंड करना। ठीक है? आप बच्चों को क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? यू कम सेकंड इन माय लाइफ और थर्ड इन माय लाइफ, माय टेलीफोन कॉल कम्स फर्स्ट इन माय लाइफ, राइट? नाउ बच्चे इसको रोल मॉडल मान के, पापा मम्मी जब घर आते हैं एंड इफ दे आर एट होम, या ट्यूटर घर आते हैं एंड इफ दे आर एट होम, आ सर बैठो अभी आ रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया में कोई अदर जेंडर के साथ, कोई अपने जेंडर के बीच में लव मेकिंग हो रही है, फोन सेक्स हो रहे हैं। देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन थ्रू टेक्नोलॉजी ऑन सोशल मीडिया। एंड जब हम अपने बच्चों को देखते हैं हम घबरा जाते हैं। आज तो आपकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है, इंटरनेट इतना बढ़ गया है, मैं तो आपको पता नहीं 25 27 साल पुरानी बात बता रही हूँ। एक फादर मदर अपने बच्चों को लेके आए, द डॉटर फ्रॉम बीए फर्स्ट ईयर हैड फेल्ड
She was telling a lie at home कि मैं एग्जाम दे आई हूँ. She had not appeared. उसको short of attendance की वजह से रोल नंबर अलाउ ही नहीं किया एग्जाम में बैठने के लिए. तो इतने में फादर जो है वो बोले कि डॉक्टर ब्रूटा, आपने वो स्कूल वाले बच्चे का एमएमएस देखा है? उन दिनों में ये वर्ड यूज हुआ था. तो मैंने कहा नहीं जी, दोनों डॉटर्स बैठी हुई हैं साथ में, वो हस्बैंड वाइफ के. तो मैंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं देखा. अरे मैं तो स्पेशली खरीद के लाया. और मैंने कहा कि क्यों? अरे देखें तो सही. मैंने कहा जी, मैं अपनी बेटियों को ऐसे बिना कपड़ों के नहीं देखती. आप देखते होंगे तो अलग बात है. मतलब अपनी डॉटर्स के आगे इम्पल्स कंट्रोल, सेक्सुअल डिजायर हर एक में होती है. हर एक की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है. ईश्वर जी ने सोसाइटी बनाई, पुरुष औरत सब कुछ दिया, हमें एक लैंड दिया जहां हम रहते हैं. वहां पे अंधेर नगरी से सिविलाइजेशन आई, सिविलाइजेशन से इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आई, बच्चों को स्टेबिलिटी देने के लिए और मैरिज की इंस्टीट्यूट को कंसोलिडेटेड रखने के लिए कि सिस्टम रहे सोसाइटी में. वहां से हमारी जो सेक्सुअल लालसाएं हैं निकल के हुआ कि पुरुष खराब है वो दूसरी औरत के पास जाता है. तो वो औरत नहीं जानती कि मैं किसका घर खराब कर रही हूँ. खराब दोनों ही हैं. डोंट थिंक के पुरुष खराब है और औरत खराब नहीं है. दीज इम्पल्सेस एंड लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल हर एक में है. अब उसकी उम्र टूट 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 के यंगस्टर्स पे आ गई है. एंड यंगस्टर्स की अवेलेबिलिटी और उनको अवेलेबिलिटी इनसाइट्स की जो है वो अवेलेबल है. क्या इंटरनेट पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता? नहीं, क्योंकि यूरोप, वेस्ट अमेरिका, सब जगह एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, माय राइट. आपके पास ह्यूमन राइट्स कमीशन है, आपके पास ह्यूमन ड्यूटीज कमीशन तो है नहीं. सो किसी को अपनी ड्यूटी तो पता नहीं है, सबको अपने राइट्स पता हैं. तो आजकल यूथ क्या कर रहा है? टीनेजर्स, यूथ तो छोड़ दीजिए, अडोलेसेंट्स को देखिए. मैं स्टेट ऑफ शॉक में हूँ. करीब मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए होंगे इस बात को कि एक 4 साल की लड़की को मदर फादर लेके आए मेरे पास. और मदर फादर डर रहे हैं लड़की से, ऐसे कोनी मार रहे हैं एक दूसरे को. डॉक्टर ब्रूटा को कौन बात स्टार्ट करेगा? वो फादर कह रहे हैं तू बता, मदर कह रही है आप बताओ. तो वो लड़की कहती है 4 साल की. मैं बताती हूँ बात क्या है. अब वोकैब्युलरी, मैं तो डफर थी 4 साल की मुझे लगता है मेरे जमाने में. और आज के बच्चे तो इवन यू आर नोवेयर एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर मैम. ठीक है. तो वो 4 साल की बच्ची कहती है आई हैव जस्ट टेकन एडमिशन इन अ बिग स्कूल. वो प्ले स्कूल से बिग स्कूल जाते हैं ना. तो आई टोल्ड माई फादर कि पापा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टिल यू डोंट बाय मी आईफोन. लेटेस्ट आईफोन जो भी था उस जमाने में 6 साल पहले, वो बिजनेस आईफोन मांगती है. सो आई आस्क्ड हर कि आपने पहली बात आईफोन क्या करना है? आर यू गोइंग टू सी द शेयर मार्केट? आर यू गोइंग टू रिसीव सम बिजनेस कॉल्स? आर यू गोइंग टू सेल समथिंग? आर यू गोइंग टू बाय समथिंग? She shrugs her shoulder like this and says, it's a status symbol. कहाँ से सीखा ये वर्ड स्टेटस सिंबल? 4 साल के बच्चे ने कहाँ से सीखा? पेरेंट्स से. तो मदर ने कहा माय हस्बैंड बॉट दिस टेलीफोन जस्ट ए वीक बैक because his foreign buyers are coming and he has to be up to date with them, so it was a status symbol for him. वो वर्ड इसने वहां से कैच किया. मैं नहीं जाऊंगी स्कूल. तो मैंने बच्चे को बोला मत जाओ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू गो टू स्कूल. फादर भिखारी की तरह ले दूं, ले दूं. फादर भिखारी की तरह बॉडी पोस्चर शो करता है मुझे. मैंने कहा सर चुप करके बैठ जाओ. आपने इसको स्टेटस सिंबल ये दिया, कल को वो कहेगी मैं ट्रैफिक जैम में कार में स्कूल नहीं जा सकती, मुझे बदबू आती है, हेलीकॉप्टर लेके दो. आने वाला है सिमी मैम ये जमाना.
where there will be helicopter pathways to go from one place to another. अभी हॉस्पिटल वालों ने तो शुरू किया है, आप देखिए अभी क्या होने वाला है. Mark my words, and you're going to face this. So what I'm trying to say, we as parents lack self-discipline and we are unable to discipline our children. मैं तो 9 बजे सबका टेलीफोन छीन लेती हूँ. I don't let children use a phone after 9 o'clock. It is, you put your password, you don't want me to see कि तुम किस साइट पे जा रहे हो, तुम पासवर्ड लगा के अपना फोन दो. कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होनी चाहिए जब आप रात को सो रहे हैं. एज एन एडल्ट आपके पास भी फोन नहीं होना चाहिए और आपके बाथरूम में प्लग पॉइंट्स होने चाहिए फॉर चार्जिंग, आपके बेडरूम में नहीं होने चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पर जब हम ही डिसिप्लिन्ड नहीं है, आप ये बताओ, आप अगर यूएस सेक्टर में डील कर रहे हैं तो ठीक है, आपने रात को 2 बजे कॉल ली, लेकिन जब आप यूएस सेक्टर में डील नहीं कर रहे, आप रात को 2 बजे फोन उठा के देख रहे हो, मेरा कोई वो मैसेज तो नहीं आया, मेरी कोई ईमेल तो नहीं आई, क्या होगा? आग लग जाएगी. क्या होगा अगर सुबह उठ के पढ़ लोगे? मैं सुबह 8 बजे से पहले अपना फोन नहीं खोलती. एंड माइंड यू, डोंट थिंक आई एम ओल्ड सो आई कैन अफोर्ड टू डू इट. I did it when I was working in that multinational also. I will not do it. The only time I kept my phone on at night was when my brother was in the hospital. I kept my telephone on. उठा उठा के मैं नहीं देखती थी, बस उसका साउंड ऑन रखती थी, साइलेंट पे नहीं करती थी. दैट वाज इट. पर मैं उठ उठ के नहीं देखती थी कि हॉस्पिटल से कोई फोन तो नहीं आया. हॉस्पिटल, दिस इज अ साइन ऑफ योर पर्सनल एंजाइटी प्लस लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. वो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप खुद नहीं करोगे तो आप बच्चों को कैसे सेल्फ डिसिप्लिन में लाओगे? एंड व्हाई इज इट that children need to have a telephone with an internet when they are in class 8? This is very important to understand. तो एक पेरेंट ने कहा कि जी घर में हाथापाई होने लगती है. लड़का कहता है कि अगर आप लेके नहीं दोगे तो मैं आपके पैसे उठा लूंगा, मैं अपने आप जाके ले आऊंगा. तो फादर कहता है चोरी करके लाएगा, बेहतर है कि मैं खरीद के दे दूं. Look at the dilemma that is happening in our society. This is all impulse control, moving towards materialism. हम क्यों नया टेलीफोन ले रहे हैं? अगर वो ठीक चल रहा है तो चल रहा है. हम क्यों दिखाना चाहते हैं कि उसके पास ये वाला फोन है, मेरे पास भी होना चाहिए? क्यों भाई? सो ये जो हमारा वैल्यू सिस्टम, इकोनॉमिक वैल्यू सिस्टम एंड मटेरियलिज्म हाई हो गया, ठीक है, और स्पिरिचुअलिज्म कम हो गई, अल्ट्रुइस्टिक वैल्यूज कम हो गई, दान देना, पढ़ाना, स्कूलों में दान देना, ये सब कम होता जा रहा है. तो फिर भुगतो बैठ के. there's no end to all this. Thank you, ma'am. Definitely, Auntie. This is, oh, sorry, ma'am. This is truly insightful. I mean, I'm feeling such a motherly feeling having talking to you that it's getting related in a very personal manner Okay, as ma'am. well. मैं आप मानोगे, I am one of those who don't hide my age. The person who used to sell me sabzi when जी. he was 60 and I was only 30. And he would say, माता जी और क्या लोगे? मैं कहा, बेटा जी सुखी रहो, खुश रहो. It's okay. जी. I don't have to hide my age anywhere, you know. Another very pertinent area that flows out of what you have just guided us upon about our value system is coming more towards the as a citizen and as an employee, especially in the government organizations, the feeling of or the placing of nation first over individual. That how do we reinforce that
so that there is need to be only vigilant and to resist temptations that may occur, which are leading to some kind of a loss to our country, to our society, but giving benefit to individual. मैम हमारे निदान ही पहले बता देती हूँ, हमारे लॉज स्ट्रिक्ट नहीं हैं. Thank you for this. You have given me the opportunity to say what I want to. आप देखिए, बड़े लोग, उम्र में बड़े लोग, चलती कार में केले का छिलका. चलती कार में means economically middle class and middle class upwards, right? It's not a two-wheeler, it's not a one-wheeler, it's not a pedestrian. वो तो करते हैं जो करते हैं, लेकिन ये भी, और संतरे छीले और बाहर, ठीक है, दरवाजा खोल के पीक पान की सड़क पे. क्यों? क्यों? क्योंकि हमें प्राइड नहीं है कि ये मेरी दिल्ली है. ये हमें प्राइड नहीं है कि ये मेरी कंट्री है. सो हमें वो नेशनलिज्म नहीं है, हमें वो मातृभूमि में मातृत्वता नहीं नजर आती. भूमि है बस, ठीक है, जोत लो और टेक्नोलॉजी लगा दो, फ्लावर्स मत लगाना, पेड़ मत लगाना. तो हमने नेचर को भी बहुत अब्यूज किया है, और में अपनी सिटी का ही प्राइड नहीं है. आप तो कंट्री की बात कर रही हैं, वहां भी प्राइड कोई नहीं है. तो हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए स्कूलों के द्वारा, जहां पे हमें अपनी कंट्री से लव हो. वी शुड बी प्राउड. आई फील सो प्राउड ऑफ दिल्ली. मैं यूएस में पढ़ने गई तो ब्रूटा साहब फोर्ड फाउंडेशन फेलोशिप पे थे. तो बॉन्ड होता है कि आप 2 साल में वापस आ जाएंगे, फिर अपनी यूनिवर्सिटी को सर्व करेंगे. तो मेरे प्रोफेसर थे क्लिनिकल के, ब्रूटा साहब उस समय एक्सपेरिमेंटल में थे. तो मेरे प्रोफेसर कहने लगे, अरुणा, डोंट गो बैक टू इंडिया. आई सेड, व्हाई शुड आई नॉट गो बैक? He says, there is no psychology in your country. मैं 1971 की बात कर रही हूँ. There is no psychology in your country. I said, don't worry, I will go and create it. But I have to go back. And मेरी ड्यूटी थी कि मैं अगर कुछ भी करना चाहती हूँ तो मैं अपनी कंट्री के लिए करूँ. No, you know how much you can earn here, earn money. And you know, okay, you are so wanted in our clinic, everybody asks for you. I said, that does not mean anything to me. When somebody in India will say that Aruna Bruta is the psychologist, I think I would have lived my life, right? But it doesn't mean anything to me resolving the white problems. And they are too many. So I wanted to come back. Then he said, if you're worried about your husband's visa, I will get that changed. We can pay back the bond, which you have filled. I said, no, sir, nothing doing. I have a brother who I must serve when I go back. He has, finished his life for me to make me Dr. Bruta. I have to go back and create psychology, at least in Delhi, so that from Delhi it can trickle into the villages. And that is very important. ये प्राइड आज के बच्चों में कहाँ है? तो सभी कहते हैं अमेरिका जाएंगे, अच्छे सैलरी कमाएंगे, ऑटोमेटिक घर होगा. वहां पे वो रेड लाइट पे खड़े रहेंगे, वहां वो बीच सड़क में नहीं आएंगे. अपने देश में आते ही वो बीच सड़क में खड़े होके घो घो एक्सेलरेटर करेंगे. मेरा ड्राइवर मुझे कहता है, मम्मी आप क्या कहते हो, लाइन के पीछे खड़े हो, लाइन के पीछे सब तो भाग रहे हैं. मैंने कहा सब भाग रहे हैं, तेरा हवाई जहाज छूटा जा रहा है, क्यों जा रहा है आगे? अगर सब पागल हैं, तू भी पागल है. तो ही से नहीं, आप बहुत जिंदगी में स्लो चलती हैं. मैं कहा जितनी मैं तेज चलती हूँ फॉर माई एज, तुम उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो, तुम पुजद्दी हो. तो हंसने लग गया. मैं क्या, तुम्हें ये नहीं होता कि मैं बाय लॉ चलूं? सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? एनफोर्स दोज लॉज. एंड वहां पे ऑनेस्टी आनी चाहिए चलान काटने में.
वहां पे ऑनेस्टी आनी चाहिए कि भाई इसके बदले तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां तो बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बेटर मैं लॉ अबाइडर रहूं। क्योंकि अपील हैज स्टॉप्ड वर्किंग इन अस, क्योंकि रोल मॉडल्स नहीं है, बिल्कुल रोल मॉडल्स नहीं है। अगर हमारे फादर कार चलाते रेड लाइट को जंप करते हैं तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? स्पीड लिमिट अगर हमारे फादर क्रॉस कर रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं करेंगे? आजकल दिल्ली में आ रहा है कि रेड लाइट पे गाड़ी ऑफ करो, कितने हैं जो ऑफ करते हैं? मेरा ड्राइवर ही नहीं ऑफ कर रहा था, तो मैंने बोला भाई तू ड्राइवर है, तू क्यों नहीं ऑफ कर रहा? तेरा पेट्रोल तो नहीं लग रहा ना। किसी का तो कहना मान लो, चाहे वो किसी की भी पार्टी का हो, कोई तो कहना मानो, तुम्हारे भले की बात कर रहा है। पोल्यूशन अगर इतना भी कम होता है तो इतना ही हो जाए, चलो ठीक है। लेकिन हम लोग जो हैं, हम नहीं मानते। आप मानोगे, हम दुबई में सड़क क्रॉस करने लगे तो वो रेड लाइट हो गई, हम वापस आ गए। इतने में हॉर्न आया, बड़ी गाड़ी, ऊंची गाड़ी, एसयूवी में कोई बैठा हुआ हिंदुस्तानी, उसने हमें कहा आप चले जाइए, हम एल्डरली हैं, नहीं फास्ट चल सकते। तो मैंने कहा ब्रूटा साहब को, मैंने कहा कृष्ण, ये वही हिंदुस्तानी है जो रेड लाइट पे होता हमारे घर के सामने तो वो हमें नीचे ले लेता या हमें माँ बहन की गाली दे के चला जाता। लेकिन यहाँ देखो वो कितना कर्टियस है, एल्डरली को कह रहा है कि आप पहले चले जाओ, राइट? तो मैंने कहा ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि हमारे पास नेशनल प्राइड नहीं है। वहां पे वो क्यों कर रहा है? उसको दुबई की भी कोई प्राइड नहीं थी, वो चालान से डरता है, क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्ट लॉज हैं। यूएस चले जाओ, दुबई, कहीं भी आप चले जाओ, देर आर स्ट्रिक्टर लॉज एज कंपेयर टू इंडिया। एंड आई थिंक वी नीड to be more disciplined. It has to come from the disciplining agency and the ministry. And then we can say कि pride लाने के लिए, city pride, country pride, nation pride, this has to come from play school, not even a big school, play school. There should be lectures, there should be songs about our city, how we should be proud of our city. अगर हमें कहीं भी, मुझे देखो, मुझे तो आप ही पागल कह दोगे, मैं कहीं भी पैदल अगर उतरी हूँ और मैंने देखा कि वहां केला पड़ा है, अमरूद पड़ा है, आप मानोगे मैं अपनी कार में प्लास्टिक की थैलियां रखती हूँ, तो मैं उसमें डाल के नाले में फेंकने जाती हूँ, तो ब्रूटा साहब कहते हैं कि लोग तुझे पागल कहेंगे। मैं क्या, कहने तो उनके कहने से तो मैं हो नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर कोई नहीं कहेगा, अब जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स थे, आपने मेहमान आ रहा है आपके घर में, घर ही है ना, मेहमान आ रहे हैं आपके घर में, रातों रात सफाइयां हो रही हैं, आपके घर में नहीं होती जब किसी ने डिनर पे आना होता है तो पेड़ लग गए, अब पानी देने का टाइम नहीं है, साधन नहीं है, इतना गाड़ियां नहीं है, तो मैं जा जाके उनको, जो घर के पास नए नए लगे थे, पानी दे रही थी, तो मुझे कहते थे कि तू क्यों कर रही है ये, कितने दिन करेगी ये? मैं क्या, वो जड़ पकड़ लेगा तो अपने आप पानी आ जाएगा नीचे जमीन से। तो अगर कुछ दिन ऐसे सब सोचे, मैं इसलिए सोचती हूँ, आई बिलोंग टू दैट फैमिली, okay, my father was in the freedom movement, so I do have sentiments for Delhi, I do have sentiments for India, I do have sentiments for tricolor, and बहुत खुशी होती है देखकर। हमें बैकवर्ड कहते थे 1971-72 में, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, जब हमने ढाका को सराउंड किया था, घेर लिया था। दे वर शोइंग लाइव इन द यूएस। यहाँ पे मेरे ब्रदर ने लाइव कुछ नहीं देखा, दे वर शोइंग लाइव। टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में अब आई है, उन्होंने लाइव दिखाया वहां पे। और जब हम जीत गए ढाका को, हमारी आर्मी आगे आई, तो इंडिया को रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई। अदरवाइज माय प्रोफेसर यूज्ड टू से, यू कम फ्रॉम अ बैकवर्ड कंट्री, देयर इज डाउरी, in your country. I said, yeah, just as much that you go to the moon, but you have separate black toilets in Baltimore, right? ये तो अब हटा है ये सब।
अभी भी वो औरतों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी हिंदुस्तान में अभी भी, चाहे आप रेप कहिए, कुछ कहिए, फिर भी हमारी कंट्री में अगर औरत पढ़ लिख के नौकरी करती है, इंटरव्यू में आती है, तो उसको ले लिया जाता है अगर वो काबिल है। वहां नहीं लिया जाता, नॉट एट ऑल, यू नो। So national pride has to come from elders. National pride has to come through law enforcement. National pride has to come from education. Artists, poets must write what is, and that should be taught in play schools. ये मेरी दिल्ली है, मैं आपको भी कई बार कह जाऊंगी, आपकी नहीं है, मेरी है, बस मुझे अच्छा रखना है। अगर आप में ये फीलिंग आ जाए, फिर आप में किसी और में आ जाए, तो आप देखो, दिल्ली विल बी सच अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन, ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। I think we have a lot of employees from organizations, government, and private both. And one very, I should say, very frequent and very much in number aspect that guidance is being sought on from you, and ma'am, is that sometimes it's said that those who work, they're overburdened with work. There are certain people who may be performing less and certain who may be performing more, so things automatically of urgency and of importance, they automatically flow to those who are relatively performing better. And also sometimes it's the emotional connect between the boss and the employee that is used, that see, we are all in the same team and this is a question of reputation of our team, and or of meeting the timeline, the deadline. And at that time, it's a dilemma faced by the employee, to be or not to be type of a question. Do I put a self discipline in position as an employee and say that let this go to tomorrow, while I know that the entire consolidated output has to be delivered today? Or do I, in my sincerity, in my devotion to work, in my camaraderie to my team, do I remove or forget or ignore the self, the family, the discipline within me, and do that work, and how many times? Or how to manage this aspect of how to manage this dilemma, ma'am? Ma'am, the first thing that you and I need to bring to the focus of attention is, it is a basic HR principle, or it is a basic natural psychological principle. Whosoever does good work, you keep loading him with work, because it's the signal of surety that that worker sends to the boss, that he can trust me and I will do it, come what may. Now, I can't say whether he does it out of sincerity or he is a workaholic. That's a personality. Or he is wanting so much praise from the other person that he destroys his inner self and, come what may, does that work, right? Now, all that can be true, but the work goes that performance has to be made. What do you do in today's corporate? Performance is the buzzword, right? So if you perform, and that is, it's now or never. That is the principle of performance. So, हाँ sir, आज ही लो, and you are in the office till 2 o'clock in the morning, and you don't go home to your wife or to your children. If it is once in 3 months, 6 months, it's okay. It's okay. But if it becomes a habit, which it will, because the boss thinks, जब मेरा इसी से काम पूरा हो जाता है, मैं इतने लोगों को क्या इन्वॉल्व करूं, कोई लड़ेगा, कोई बुरे कमेंट पास करेगा, आपस में लड़ मरेंगे, यू नो, एंड इतनी बिजली, इतना एसी लग जाएगा, इतना ओवर टाइम देना पड़ेगा, राइट? सो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना है, तो ये गधा है, ये करता है, तो चल इसी को दे दे. Do you see that? Now, it is for that person who I've now said ki everybody should have a psychologist. It is for that person to find out what his therapist advises him. I will say,
if once in a month you have to spend more time with work, it's fine. But if it is becoming thrice a week, you are disengaging yourself from your own self, from your inner self, because you will not have the time to do yoga, to walk, to breathe. You will not have time to sleep. You will be sitting on a chair, so your thighs are going to be paralytic. There's less blood supply to the brain because your thighs are sitting. You're not getting up and walking up and down the office. You're taking more coffee, you're taking more tea while you are doing that work. You're not having your lunch and dinner in time. You're not eating fruit. You're not interacting with the others. So you are a bookworm and you are seeing, oh, that way. And you're harming yourself. So you started today's webinar with work-life balance. So where is that balance? Okay. So I say it is everyone's choice. अगर आप बीवी से छुटकारा पा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे नो कमेंट्स. अगर आपका किसी से अफेयर टूट गया है, तो आप उसको भुलाने के लिए इतना काम कर रहे हैं, then it's a wrong way of de-stressing and forgetting her. I think if you do jogging, you will forget her better. And there'll be many other girls and boys for each other than just the one who sort of slipped out of your mind. And I will say that work-life balance is top priority, because that balance for work-life, life for your body, life for your mind, life for your nutrition, life for your spondylosis, you're doing like this all the time, and life for making your old age more healthy. That is what you're not looking at. It's very important to understand. So you choose what you want to do. I don't think I can choose for you. I can only show you pointers, what's going to happen. You work more, you will be given more work. That's very, very important. Yes, that's such an eye opener for, I think, almost all of us in different organizations Food today who देख are. लीजिए ना आप. We are into, adults are into junk food. Do you Yes. know maida slows down information processing in the brain? Maida encourages the autonomic nervous system to react emotionally to the environment than rationally to the environment. ठीक है? Atta improves your memory. Atta improves work efficiency. So अगर आपने food choose करना है, then you please tell your office canteens to produce better food which you can take, rather than just tea and coffee, tea and coffee. This is very important for you to understand. I mean, ma'am, we could go on and on and on and on, and it's such a mesmerizing conversation, and so insightful also. I mean, it's just touching at the core of the heart what we all feel, whether we say it or not. But in the bottom of our hearts, we know that we all are going through this stress, this imbalance in work, life, family demands. More so for women, I think, who are required to perform to prove themselves as well. Uh, and it's really enlightening, and I'm sure everybody who's joined with us today has benefited a lot, and it's given them a reflection, something to ponder within themselves on where we are headed to. I think So we need, thank you, ma'am. I think I would at the end say, please go back today and introspect in your own mind. Where is my value system? Where am I heading for? 6 बंगले बना लोगे, क्या करोगे? 6 में रहोगे? खानी तो आपने मूंग की धुली दाल है एट द एंड ऑफ द डे. प्लीज, मेरी एज में आओगे, कुछ और हजम नहीं होने वाला. ठीक है? रिटायर हो गए, कोई आपको याद नहीं करने वाला. ब्यूटीफुल फेयरवेल, बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद तू कौन मैं कौन. इनर सेटिस्फैक्शन आपको हमेशा याद करवाएगी कि तूने जो किया
नेशन के लिए किया, सिटी के लिए किया, फैमिली के लिए किया, अपने लिए किया, ईश्वर जी के लिए किया जिसने भरपूर आपको मौका दिया काम करने का। आप सशक्त हैं कि आप बॉडीली सशक्त हैं, मेंटली सशक्त हैं, इकोनॉमिकली सशक्त हैं, ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहां आपको एजुकेशन मिली है, आप चल फिर सकते हैं, आप मेंटली रिटार्डेड नहीं हैं, आप सुबुद्धि वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, वो सुबुद्धि है या कुबुद्धि है। आप आज प्लीज वापस जाके सोचना, मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्टर ब्रूटा मुझे क्या कह रही हैं, क्या कह गई हैं, और कुछ गलत कहा हो क्षमा करना, माँ समझ के क्षमा कर देना, नानी समझ के क्षमा कर देना, लेकिन कभी आपको याद आएगा कि जो कहती थी, मैं किस दौड़ में जा रहा था, वो मुझे पैदल चलने को कह रही थी। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड Yes, ब्लेस यू। sir. No, ma'am, we are grateful to you from the core of our heart for sparing time from your so busy schedule. We've kept you away from a lot of your responsibilities. Apologies for that. But this was very much needed to open our own insights that we have closed down on us intentionally or unintentionally. So grateful to you, ma'am. And I hope we would turn out to be into more responsible individuals, more vigilant citizens, and happy individuals with your guidance. Thank you Thank so you. much. Namaste.